just children, I should tell you, this is very important. When I am teaching you something, you should be able to read. Still, many students I can see they are not able to read properly. Many. This is your unit test is over, and now there will be half yearly exams. After 2 or 3 months, within 2 or 3 months, there will be half yearly exams by September. And there will be reading exam also. It is very important. Wait, Varnika. Just wait for a minute. And it is very important for you all to read and learn poems because all this will come in the exam. Okay? I can see many children are not. I don't. You know yourself. आप better जानते हो कि हम reading नहीं कर पा रहे हैं. Daily I am reading the chapter many times, each and word I am reading, but I am not getting any response properly. Few students are there, okay, अभी बहुत से बच्चों ने improve किया, but many have also not improved also. So next time, those who are not able to read, please read properly. And one more thing I want to say, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, they are joining the first class, पहली क्लास कर रहे हैं इंग्लिश की, मैथ्स की बंक हो जा रही है, दे आर लीविंग आउट द मैथ्स क्लास, हिंदी क्लास नहीं कर रहे हैं, एंड देन लास्ट में वो आखिरी वाली क्लास को कर रहे हैं. बेटा दिस इज नॉट द वे. आप स्कूल में ऐसे करोगे, इन स्कूल हाउ विल यू अटेंड द क्लास? फर्स्ट पीरियड अटेंड करने के बाद सेकेंड और थर्ड पीरियड आप चले जाओगे अपने घर, फोर्थ पीरियड मैम के पास पढ़ने के लिए आओगे? नो. इज इट अलाउड इन स्कूल? नो. Daily there are 3 to 4 periods online classes. You have to attend all the classes, children. This is not you are doing one class and disappearing in the other class. Your attendance will be marked absent. ठीक है? ये नहीं कि फर्स्ट पीरियड मैम का है तो उसमें अटेंडेंस दिया या सेकेंड पीरियड में आ गए, नहीं. आपको 8 to 10:45 all the children should be available. अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस बिकॉज मैं यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स को फ्रिक्वेंटली देखती हूँ सारी क्लासेस अटेंड करते हुए, एंड बाय द लास्ट टाइम विद इन 1 आवर आपको सब कुछ हो जाता है. 8 to 9 आपने अटेंड किया, 9:30 अटेंड किया, 10 o'clock तक फीवर हो जाता है आपको. इफ यू डोंट वांट टू अटेंड, डोंट अटेंड, बट आप कोशिश करो पूरी क्लासेस अटेंड करनी है. ठीक है? ओके. All for everyone I am saying, nobody will open the microphone. Everyone I am saying, this is very very important, right? Varnika, if you want you can read now. Once again I will read this chapter, and today everyone will read this chapter. Next class जो मैम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगी उसकी रीडिंग सबसे करवाएंगी, बिकॉज ये चैप्टर मैंने बहुत टाइम रीड कर चुका है. आई वाज जस्ट स्टार्टिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट्स and still 2 have not joined. No problem. Now Varnika reads. Varnika, if you want you can read man-made and natural things. Yes, Varnika, start reading. Okay. Who else wants to read? Yes.
Okay, stop. Now lastly again, once again I will read for those. Okay, see in the book children, especially जिनको रीडिंग करना नहीं आ रहा है. Okay, everyone see in the book, and then today what will be your homework? To read this lesson. Okay, and I will send you today, I will send you diagrams. Okay, so आज आपको क्या करना है, चैप्टर का हेडिंग डालना है थिंग्स अराउंड अस, और मैम आपको डायग्राम्स देंगी. सो आपको वो चैप्टर के सामने जो जो आपके चैप्टर के सामने वाला जो ड्राइंग पेज है, देयर यू हैव टू ड्रॉ दोस डायग्राम्स. ओके, आप वहां पे ड्रॉ करना है योर वर्क. ओके, class we will do exercises and I will send you question answers. Okay, book work hoga, but today this is the last time I am reading and giving this chapter for reading, because ये बहुत बार reading हो चुका है. I've just begin for the new students also, but still अभी पहले वाले बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं. So see in the book once again, things around us. Yes beta. No, we don't do, Riddhi, we don't do. जो आपको वर्क सेंड किया जाएगा आपको वही कॉपी में करना है, ये प्रॉपर्ली मेंशन होगा. नो अदर वर्क. बुक का वर्क बुक में रहता है, कॉपी के लिए हम सेपरेट वर्क देते हैं. आई मेंशन कि डू दिस वर्क 2 pages 6,8 इन बुक. तो ये क्लियरली मेंशन होता है, कॉपी में कुछ भी फालतू नहीं लिखना. नो रबिश यू हैव टू राइट. ट्रू एंड फॉल्स है, जैसे बुक से पिकअप होता है, क्या टीचर्स बुक से देती है उसको कॉपी कर लो. नो, यू डोंट हैव टू राइट, ओनली क्वेश्चन आंसर्स एंड डायग्राम्स. राइट? ओके, और जो भी वर्क दिया जाएगा आपको वही करना है कॉपी में. राइट? ओके, नाउ चिल्ड्रन once again see your book. Everyone, this is the last time I am reading. See your book. Things around us. We see many things around us. Some of these things are made by man. Some occur naturally. Let us learn about them. A-B-O-U-T, about. Now next page 25. Man-made and natural things. Things that are made by man are known as man-made things. The book you read, the pencil you write with, the bag in which you carry your books, houses, cars, and many other things are made by man. Things that are not made by man are known as natural things. They are already present in nature. Mountains, rocks, rivers, clouds, and many other things occur naturally. Living and non-living things. You already read about many natural things. Page number 26, children. They can be living or non-living things. Living things are those that need food. They grow, breathe. Breathe की क्या स्पेलिंग होती बेटा? Breathe की देखिए B-R-E-A-T-H. वो breathe भी होता है बट उसको breathe नहीं पढ़ते, breath पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? What do we read? Breath. Breathe में B-R-E-A-T-H-E लगेगा, पीछे E होगा. Breathe. ओके, मेक श्योर TH पे मत रुक जाइए. जैसे आप लोग ने देखा होगा क्लॉथ की स्पेलिंग C-L-O-T-H-E, क्लॉथ लिखते वैसे. नो, C-L-O-T-H, क्लॉथ. ब्रीथ में TH नहीं रहेगा, T-H-E. सो मेक श्योर फॉर स्पेलिंग्स, बिकॉज कितने नंबर कट होते हैं स्पेलिंग के पता है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक स्पेलिंग गलत, हाफ मार्क्स कट. तो कितने नंबर हुए? बिग 0. मैथ में पढ़ा था ना आज हमने इसके बारे में, ये हो जाता है. सो स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
Yes, I'll not try to cut, but make sure mistake नहीं हो. So they can be living or non-living. Living things are those that need food. They grow, breathe, feel, and produce babies. Babies, IES. ठीक है, EIS मत करिएगा. बेबीज में क्या होगा, पहले आई होगा, BAB, IES, EIS नहीं. Okay, they can move on their own. Animals, plants and humans are living things. Obviously animals living thing है, क्योंकि एनिमल भी मूव करते हैं, खाना खाते हैं, फूड, दे ब्रीथ, दे फील. अगर हम उनको कुछ करते, रिएक्शन देते हैं ना वो लोग, कि हमें आके दिल हार्मस ऐसे एक्शंस देते हैं ना. सो बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स कैसे लिविंग थिंग्स हैं, बिकॉज प्लांट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करते हैं रात में. आपको पता है, हमें ऑक्सीजन तो देते हैं दिन में, बट वो क्या रिलीज करते हैं रात में, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दे ग्रो. इतना छोटा सा सीड हम ग्रो करते हैं और वो इतनी बड़ी ट्री में ग्रो हो जाता है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग. क्या टेबल ग्रो कर सकता है? नो. बॉक्स ग्रो कर सकता है? नो, बिकॉज दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज दैट डू नॉट नीड food, they do not grow, they do not breathe, they do not feel and produce babies, and they cannot move from one place to the another on their own. Okay, now one thing more आपकी बुक में दी हुई है, आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है कि जो हमारा ताजमहल है बेटा, वो आगरा में है. वेयर इट इज ताजमहल? इट इज ए आगरा. और ये 7 वंडर्स, इट इज वन ऑफ में से ये है. ओके, और इसको कितने इयर्स लगे बनने में? 20 इयर्स. यूजुअली हमारा जो हाउस होता है वो 6 मंथ में या 1 ईयर में कंस्ट्रक्ट हो जाता है. 1 ईयर, 1.5 ईयर, डिपेंड्स, बहुत ज्यादा अगर होता है. बट इट टुक 20 इयर्स टू बिल्ड स्ट्रक्चर. मतलब ये बनने में 20 इयर्स लेता. दैट्स व्हाई इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे. योर होमवर्क इज read the lesson again and complete your diagram in science copy. ऐसे करना है. जो आपकी रूल्ड पेज होगा, जैसे आपका ये वाला किस तरह से पेज होगा इंग्लिश में होगा, उस पे आपको चैप्टर का नेम लिखना है. टुडे इज 12th जुलाई. यू विल राइट. और जो ड्राइंग पेज उसके सामने होगा, वहां पे आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. ओके, ओके चिल्ड्रन, bye.